Class 8, your next topic is very large and or maybe very small numbers if you have. For that, we write them in standard form because writing a very huge number, जिसमें 8, 10, 16, 20, 25 कितनी भी digits हो सकती हैं, it becomes very difficult to write it on paper, okay? And if the number is too small, then also it will have a number of decimal places. So when we come across such numbers, आता है कभी जैसे we have to size of bacteria extremely small होता है and distances universe के distances होते हैं वो extremely large होते हैं. Okay, so when we come across some such numbers, so for that design किया गया है एक standard form जिससे कि writing convenient हो जाए. In short, we can write it. Okay, now what happens in standard form is, in standard form you just have one digit before the decimal place. एक decimal place होगा, उससे पहले सिर्फ एक digit आना है. Okay, rest behind we'll see how many, and then we write it in powers of 10 to the power of something. It can be positive or negative depending upon, अगर small number होगा तो negative power होगी क्योंकि वो छोटा decimal में होगा. Okay, और large number होगा तो positive power होगी. You get that? If the number is very large, then you'll have a positive power of 10 to the power of some positive number, and if it is very small, then it will be 10 to the power of some negative number. Right? And बस हमने क्या ध्यान रखना है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट आएगा. That is known as your standard form. So when you'll do the examples, you'll understand. I have done few for you out here. Before starting off, you will go through what is given in your books. Read through that, then you will understand it better. Okay? So like the first question here was express in standard form. So I have taken up an example out here, that is 0 point. You had this number was given to you. So you can see there are so many decimal places in this. तो ये कितना लिखने में इसको आफत है. अभी तो इसमें इतनी है. There can be a number smaller than this, can have more decimal places also. Okay, so precise way of writing it, which we call as standard form. So what did I tell you in standard form? That decimal से पहले सिर्फ एक digit होनी चाहिए. Of course, apart from 0, because 0 is not considered as a digit out there. Okay, so not a digit means it doesn't make a sense. डेसिमल से पहले अगर यहाँ पे आप 008 लिखोगे तो उसका मतलब एक्चुअली 80 होता है. राइट? ओके, सो यस, सो फॉर स्टैंडर्ड फॉर्म आई एम सेइंग द डेसिमल शुड बी आफ्टर 8 देन. ओके, ये फर्स्ट डिजिट आ रही है हमारे पास, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. सो वी विल पुट द डेसिमल बिफोर 8 एंड राइट इट एज 8.5. बट अब हम अपने मन से नंबर थोड़ी चेंज कर सकते हैं. द वैल्यू हैज टू बी इक्विवेलेंट. तो वो इक्विवेलेंट कैसे होगा? सी, दिस नंबर इज डेसिमल मीन्स अगर आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करो, यू हैव स्टडीड कन्वर्टिंग फ्रॉम फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन. सो अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो आई रिमूव द डेसिमल फ्रॉम हियर, एंड जितनी डेसिमल प्लेसेस होती हैं उतने 1 फॉलोड बाय उतना जीरोस कम्स इन डिनोमिनेटर. ओके, लाइक इफ आई राइट 0.5, सो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है? 5/10. ओके, 1 डेसिमल प्लेस थी. इफ इट इज 0.51, इट बिकम्स 51/100. 2 प्लेसेस हटाई हमने, तो जितनी डेसिमल प्लेस शिफ्ट होती है मींस उतने टेंस से डिवाइड हुआ है वो, तब ये डेसिमल प्लेस आती है. ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिकॉल एंड यूज हियर. सो इन दिस इफ यू सी नाउ यू काउंट कि मैंने ये डेसिमल यहां से यहां शिफ्ट करने में कितनी प्लेसेस कवर की हैं. सो 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. तो मैं 12 प्लेसेस आ गई हूँ. Alright, so I will write 10 to the power of 12 and it has to be negative. Why? Because ये डेसिमल मेरा भी क्या होना है? लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट होना है या नंबर को छोटा होना है. ये छोटा नंबर था, so we need to divide it. तो नेगेटिव पावर, अभी हमने लॉज ऑफ इंडिसेस करे थे, तो नेगेटिव पावर मीन्स इन डिनोमिनेटर. सो 10 to the power of -12 मीन्स अपॉन 1 फॉलोड बाय 12 जीरोस, एंड फिर उसकी वजह से जब आप डेसिमल लगाओगे तो डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, तो ये 8 की जगह यहां पहुंच जाएगा. तो ये दोनों नंबर्स इक्विवेलेंट हो जाएंगे. यू गेट दैट? ओके, सो दिस इज व्हाट वी डू इन चेंजिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है कि ओके, ये नंबर है एंड मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मीन्स सिंपली कि डेसिमल से पहले एक डिजिट आना है. अब आपको ये सोचना है कि इस नंबर को अगर मैंने ये बनाना है तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई, 10 to the power of कितने से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है. तो अगर आपको लेफ्ट में जाना है डेसिमल या छोटा नंबर है, दैट इज लेफ्ट में डेसिमल जाएगा तभी नंबर छोटा होगा. सो यू नीड टू डिवाइड, एंड व्हेन यू नीड टू डिवाइड द पावर शुड बी नेगेटिव. नेगेटिव पावर मीन्स इन डिनोमिनेटर. राइट? सो क्योंकि ये मेरा
यहाँ जाना है पॉइंट, तो इसलिए ये -12 आया। इज दैट क्लियर? बाकी आपको सिंपली काउंटिंग करनी है 1 डेसिमल प्लेस तक कितना आपने शिफ्टिंग किया है। नाउ द अदर नंबर वाज 620000, दैट वाज अ ह्यूज नंबर एंड अ बिग नंबर, पॉजिटिव मतलब बड़ा नंबर, सो पॉजिटिव पार आएगी। ओके, बट कॉन्सेप्ट वही है, आपका डेसिमल 6 के बाद आना चाहिए, 1 प्लेस बिफोर द डेसिमल। सो 6.02। अभी ये सारे इतने जीरोस लिखना छोड़ के आई विल सिंपली राइट इट एज 10 to the power of, इतने जीरोस आने के लिए कितने 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा? यू कैन काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्योंकि आपने डेसिमल यहाँ लगाया है। तो जब आप इसको 15 प्लेसेस शिफ्ट करोगे अपने पॉइंट को, यहां से जब ये 15 प्लेसेस शिफ्ट होगा तब जाके ये नंबर बनेगा 602 फॉलोड बाय 12 जीरोस, 12 और 13 जितने भी थे, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरोस वर, 13 जीरोस एंड प्लस 2 मोर प्लेसेस, क्योंकि डेसिमल आपने एक्चुअली यहाँ लगाया है। यू गेट दैट? सो इसलिए इसमें पॉजिटिव 15 पार आ रही है, क्योंकि ये पॉइंट अब 15 प्लेसेस शिफ्ट होगा तब जाके ये नंबर बनेगा। ठीक है, कुछ आया समझ में? नाउ देयर आर सम मोर एग्जांपल्स देयर, यू गो थ्रू देम, ओके, सी दोज एग्जांपल्स कि वो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ऑलराइट, उनको करो एंड देन शो मी द सोल्यूशन। फेयर क्या मीन्स रफ में ही करो, विच एवर वे, मतलब यू सी वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट, 1 लाइन आंसर है। डोंट कॉपी द आंसर बिकॉज एग्जाम में या फर्दर स्टडीज में नो वन विल कम टू लेट यू नो द आंसर। यू हैव टू लर्न कि हाउ दिस हैज कम। ओके, सो नहीं आता है आप पूछो, आस्क मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। बट इफ आई वुड सॉल्व इट तो आपको लगता है हाँ मुझे सब आ रहा है, सो जस्ट ट्राई देम फर्स्ट ऑन योर ओन। If you don't get it, ask me, I will redo it for you and explain you some more examples. Okay?